Hello students, welcome to Acadsa. Now we are going to discuss about the chemical properties of the acid halides, right? तो acid halide में हम लोग acid chloride लेके as example proceed करेंगे. तो इस केस में तो पहला तो acid chlorides how it react with organometallic compound. The first one is the Grignard reagent. So we know that when we take the Grignard reagent, the negative part, the R, the alkyl group will act as a nucleophile. अब ये जाके यहाँ पे कार्बोनिल कार्बन के ऊपर रिएक्ट करेगा एंड देन ये ऐसे माने सी डबल बॉन्ड ब्रेक होगा एंड व्हेन इट कम बैक द क्लोराइड एज ए विच इज अ गुड लिविंग ग्रुप वो लीव करेगा एंड यू विल गेट ए कीटोन बट फर्दर इफ आई रिएक्ट विद द ग्रिग्नेड रिएजेंट द सेम ग्रिग्नेड रिएजेंट वो फिर से ये ब्रेक आर माइनस ब्रेक होगा और यहाँ पे अटैक होगा एंड you finally will get tertiary alcohol. So whenever we take the Grignard reagent, if it is one equivalent mentioned, then you will get ketone. But two equivalents or more than that, or in excess condition, always tertiary alcohol milega. Now we will take another example of the organometallic, that is dialkyl cadmium. अब डाइअल्काइल कैडमियम इन द सेम वे जैसे ग्रिग्नेड रिएजेंट ये न्यूक्लियोफाइल ऐड करेगा जो अल्काइल ग्रुप है वो जाके इस कार्बोनिल कार्बन के ऊपर रिएक्ट करेगा और क्लोरीन ग्रुप एज ए गुड लिविंग ग्रुप चला जाएगा तो यहाँ पे आपको कीटोन मिलेगा. Next, move on to the third lithium compound, organometallic compound, that is organocuprates, which is popularly termed as Gilman's reagent. तो इसमें आपको कॉपर एज ए आयन में रहेगा और लिथियम रहेगा और दो अल्काइल ग्रुप यहाँ पे आपको अटैच है. तो इस केस में भी ये जो आर अल्काइल और कॉपर के बीच जो बॉन्ड है वो टूट के यहाँ पे अटैक होगा और लिविंग ग्रुप जो कि क्लोरीन है वो चला जाएगा और आपके पास कीटोन मिलेगा. तो गिलमैन रिएजेंट एक्ट एज ए एक्सेलेंट न्यूक्लियोफाइल. तो इस केस में यू माइट बी वंडरिंग सर यहाँ पे ग्रिग्नेड रिएजेंट भी है और डाइअल्काइल और गिलमैन है तो व्हाई टू यूज दिस डाइअल्काइल इफ यू गेट द कीटोन. Now the interesting fact is that when we take Grignard reagent, if two equivalent or more than excess, वो tertiary alcohol में तब्दील कर देता है जो कि आप एसिड क्लोराइड. But if I take dialkyl cadmium or Gilman reagent, it will be stabilized to the मतलब limitation बस कीटोन तक ही होता है. Further ये रिएक्ट करके अल्कोहल नहीं बनाता है. This is the synthetic use of using dialkyl cadmium and organocuprates or the Gilman reagent. Now let us discuss very important the Curtius rearrangement. तो बेसिकली Curtius rearrangement क्या होता है जब acyl azide under the influence of heat when the nitrogen gas is eliminated तब आपको एक important intermediate मिलता है which is called as alkyl isocyanate and the interesting feature is that this can be isolated. इसको आप सेपरेटली आइसोलेट कर सकते हैं और इसके ऊपर आप न्यूक्लियोफाइल डाल के वेरियस रूट्स मिलेगा आपको दूसरे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बनाने के लिए. एंड व्हेनेवर वी डिस्कस व्हेन वी दिस कन्वर्शन हैपेंस इन इनर्ट सॉल्वेंट then only you can get the alkyl isocyanate. तो ये जो फेज है एसाइल एजाइड से अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हीट टू फॉर्म alkyl isocyanate is called as Curtius rearrangement. Ab, how it is linked with the acid chlorides under this section? So acid chlorides can effectively converted into acyl azide by the use of sodium azide. अगर आप सोडियम एजाइड यूज करते हैं तो आराम से एसिड क्लोराइड को एसिड एजाइड में कन्वर्ट हो जाएगा. अब ये फर्दर एसिड एजाइड को अगर आप हीट देते हैं तो कर्टियस रिएरेंजमेंट होगा, नाइट्रोजन एलिमेंट होगा और finally you will achieve the isocyanate. But if उसके बाद आप जो सॉल्वेंट यूज करेंगे उसके हिसाब से आपका प्रोडक्ट्स मिलेगा, right? And another efficient way to get acyl azide is that you take ester. आप एस्टर लो, उसके बाद आप हाइड्रोजन दीजिए, उसके बाद नाइट्रोस एसिड दीजिए, then you will obviously get acyl azide. This is another synthetic way or route to get acyl azide. Now let us understand the
acyl azide factor, the Curtius rearrangement with an example. And this Curtius rearrangement by checking out the mechanism. तो पहले तो एजाइड बन गया। अब ये जो एजाइड बना है, यहाँ पे मैंने एक एजाइड का एक रेजोनेटिंग फॉर्म लिखा गया है, दिया गया है। अब इस केस में द इजीएस्ट कन्वीनिएंट वे इज दैट यू हैव टू रिमूव दिस एन नाइट्रोजन गैस एज N2। तो आपके एक नाइट्रोजन बचेगा। तो इस केस में जब ये इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट हो रहा है, दिस ग्रुप द R अल्काइल ग्रुप is being shifted to the N over। तो यहां पे माइग्रेशन हो रहा है, माइग्रेशन ऑफ द अल्काइल ग्रुप इज टेकिंग प्लेस, देयर बाय N2 इज रिलीज्ड और आपके पास आइसोसाइनेट बनेगा। तो ये आप देख सकते हैं जब ये रिवॉल्व हो रहा है, यहाँ माइग्रेट हो रहा है, ये सिंगल स्टेप में ये होगा और साइड बाय साइड N2 गैस विल बी एलिमिनेटेड। नाउ इंटरेस्टिंगली ये आइसोलेटेड हो सकता है। अब इसके ऊपर अगर हम लोग वाटर डालते हैं, एक्वस मीडियम में वर्कअप करते हैं, तब इट्स वाटर एज ए न्यूक्लियोफाइल इज गोइंग टू अटैक ओवर द आइसोसाइनाइट। जो कार्बोनिल कार्बन के ऊपर है, ये जो कार्बन है उसके ऊपर अटैक करेगा और आपको एक स्पीसीज बनाएगा, इंटरमीडिएट स्पीसीज, वो है कार्बोमिक एसिड। एंड फर्दर यहां से ये जो पार्ट है, यहां से आपको कार्बन डाइऑक्साइड एलिमिनेट होगा और फाइनली यू विल गेट एमीन। So whenever isocyanate is treated with water, you will get amine as the final product. Now, if I take another medium का मतलब alcoholic medium में काम करते हैं, जैसे कि यहाँ पे इस केस में alcoholic medium में काम करते हैं, then आपको एक अलग स्पीसीज मिलता है जिसको टर्म्ड एज यूरेथिन। तो यहाँ पे एस्टर टाइप भी है और एमाइड टाइप भी है, उसको हम यूरेथिन बोलते हैं। As we discussed about water या aqueous medium, तो आपको एमीन और डीकार्बोक्सिलेशन होगा। And if we take amines and react with isocyanate, तो आपको सब्स्टिट्यूटेड यूरिया मिलेगा। तो आप देख सकते हैं ये यूरिया का कंपोजिशन है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूटेड हो रहा है। ओके, लेट अस सी दिस विद एन एग्जांपल। अब हम यहाँ पे आइसोसाइनेट लिए, स्पेसिफिक आइसोसाइनेट लिए, अब टर्शियरी ब्यूटानॉल के साथ रिएक्ट करवा रहा है। तो व्हेनेवर अल्कोहल रिएक्ट विद दिस, यूरेथिन्स विल बी फॉर्म। तो इस केस में भी यूरेथिन मिला है। नाउ यहाँ पे भी बेंजाइल अल्कोहल लिया गया है। अल्कोहल और आइसोसिनेट कैसे रिएक्ट करेगा टू फॉर्म यूरेथिन्स। ओके, नाउ let us discuss about the stereochemistry that is happening in the Curtius rearrangement। तो यहाँ पे जो माइग्रेटिंग ग्रुप की बात हम लोग किए थे, जो माइग्रेटिंग ग्रुप जो आर है, राइट, इट मेंटेन्स और इट रिटेन्स द कॉन्फ़िगरेशन, राइट। मतलब जो आर अगर कायरल है और आफ्टर द कर्टियस अरेंजमेंट इट रिटेन्स द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द आर। इट मीन्स दैट जो मैकेनिज्म हो रहा है, माइग्रेटिंग हो रहा है यहाँ पे, इट इज फॉलोइंग ए कॉन्सर्टेड मैकेनिज्म, सिंगल स्टेप में ये काम हो रहा है। अब ये चीज हम एग्जांपल के साथ देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक मॉलिक्यूल लिया है। अब ये जो आर है, या जो मार्क मैंने किया है, ये जो आर है, ठीक है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड लिया है। उसके बाद SOCl2 और कार्बोक्सिलिक एसिड से इज द बेस्ट वे टू प्रिपेयर एसिड क्लोराइड। तो पहला स्टेप में एसिड क्लोराइड बन चुका है। अब एसिड क्लोराइड बनने के बाद सोडियम एजाइड डालने से क्या होगा, एसिड क्लोराइड्स एंड एजाइड, सोडियम एजाइड विल गिव यू एसाइल एजाइड। अब एसाइल एजाइड को अगर आप हीट करते हैं तो कर्टियस रीअरेंजमेंट फॉलो होगा, आइसोसेनेट फॉर्म होगा, एंड देन इफ आई add water, I will get the amines. Now, the main important thing what we have to focus is that ये R का क्या मतलब है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो R ग्रुप है एसाइल एजाइड, जो कि माइग्रेट होके इस N के ऊपर आएगा, वो फाइनल प्रोडक्ट में भी उसका जो स्टीरियो कॉन्फ़िगरेशन वो सेम है। इसका मतलब ये जो चीज है स्टीरियोकेमिस्ट्री, when R migrates, remains the same, retains the configuration, right? Now, students, I have given you a question over here.
Please pause the video and try it by yourself. ओके, तो इस केस में हम लोग टोल्यून लिया गया है और उसके बाद ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे एक हिंट जो है, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन एजेंट हम लोग सपोज यूज करते हैं। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करने से क्या होता है, इफ यू टेक द टोल्यूइन और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन करते हैं, तब आपको जो अल्काइल ग्रुप है ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसमें मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजोइक एसिड फॉर्म हो गया। उसके बाद हम लोग क्या रिएजेंट डाल रहे हैं, SOCl2, एंड SOCl2 और कार्बोक्सिलिक एसिड क्या फॉर्म करेगा, एसिड एसिड क्लोराइड्स। तो यहाँ पे आपको एसिड क्लोराइड मिल चुका है। अब एसिड क्लोराइड के बाद सेकेंड रिएजेंट क्या अप्लाई किए, एजाइड, सोडियम एजाइड। So whenever we add sodium azide, what will happen? This chloride will be eliminated और आपको एसाइल एजाइड मिलेगा। एसाइल एजाइड मिल गया। उसके बाद हीट किया गया है, तो हीट से क्या होता है, यहां से नाइट्रोजन गैस चला जाएगा, मतलब इस पर्टिकुलर स्टेप में कर्टियस रीअरेंजमेंट होगा और फाइनली आपको आइसोसाइनेट फॉर्म होगा। You will get isocyanate. You will be getting isocyanate. Isocyanate मिलेगा। एंड यू हैव टू नोटिस इस क्वेश्चन में आपको बस हीट दिया गया है, तो इट विल बी रिमेंड एज फिनाइल आइसोसेट। ये जो आर वो ये फिनाइल है, तो ये फिनाइल आइसोसाइनेट है। So the correct option will be B. I hope students you understood this concept. Thank you.